Good morning, dear students. Welcome back to my channel Simplified Maths. Today, in chapter 10, lines, part 10, in the particular lecture, we are beginning with the topic after exercise 10.2. Up to 10.2, we have seen all the theory and problems. Now, see what is the title I have written. It is a general form of equation of line. General form. Okay. The general form means in the 9th and 10th standard you have learned one word, that is a linear equation. Solution of the linear equation. Okay. What was that linear equation? ax plus by plus c is equal to 0. याद है ना? ax plus by plus c is equal to 0. And there is one important condition, I will explain this. A square plus b square is not equal to 0. Okay. This is the general equation of a line. General equation of a line. Okay. Right. Now see why it is a line. As I just told you, in 9th and 10th standard you have studied linear equation. ये linear equation है. So how the word linear equation given? Linear means it's a equation, okay, whose graph, if you draw the graph of it, then it will be a straight line. It will be a line. Okay. अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो लाइन ड्रॉ होगी, इसलिए उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. So in fact it is nothing but the equation of the line, which is the general equation of a line. Okay. In fact, if you see all the problems of exercise 10.1 and 10.2, dear children, तो आपने देखा होगा कि उसमें सारे फाइनल आंसर्स जो है, आपने कोई भी फॉर्म यूज़ किया हो, अगर आपने पॉइंट्स लो फॉर्म यूज़ किया, आइदर यू हैव यूज पी ओमेगा फॉर्म, और इफ यू हैव यूज पी ओमेगा मीन्स नॉर्मल फॉर्म, और इफ यू हैव यूज 2 पॉइंट फॉर्म, एनीथिंग यू हैव यूज, फाइनल आंसर इसी टाइप में हमने लिखा हुआ है. ठीक है कि नहीं? राइट. सो इनफैक्ट मेरे हिसाब से दिस शुड बी जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन शुड बी गिवन अर्लियर, बट अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक आई एम गोइंग. सो नाउ द टॉपिक इज गिवन इज जनरल इक्वेशन. नहीं तो इसको पहले दे देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. राइट. सो नाउ व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 मीन? ओके. जस्ट सी here, note down, I will note down one thing, that a square plus b square not equal to 0. This means इसका मतलब ये होता है कि a and b are not both 0 at a time. At a time. At a time means simultaneously. Okay. मतलब क्या कहते हैं ये? A and B दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते at a time. Just check. If A and B both are 0 at a time, then what is going to happen? हाँ दोस्तों, क्या होगा? 0x plus 0y plus c is equal to 0. Then what? It is not a linear equation, है कि नहीं? Because 0x plus 0y no mean, it's only c is equal to 0. c मतलब constant हो गया, तो linear equation तो आया ही नहीं. ठीक है ना? Right? So that's the thing. So what we have to remember, कि a square plus b square not equal to 0 is must, is compulsory. ठीक है ना? ये होगा तभी ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा. ओके. एंड ऑल्सो यहाँ पे भी आप देखो कि अगर a एंड b बोथ यू पुट 0, जस्ट चेक, सपोज a इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. देखो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. ओके. सो व्हाट आंसर? 0. सो यहाँ पे मैंने लिखा है नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि दो में से एक तो नॉन ज़ीरो होना ही चाहिए. Isn't it? Okay. Right. Now one more thing.
Now in the textbook, our new textbook, that is NCERT textbook, here they are using the capital letters A, B, C जो है ना, they use capital AX plus capital BY plus capital C is equal to 0. But instead of that I have taken the small letters only. Okay, ठीक है. So that doesn't matter, it's a symbol, question of symbol only. तो आप कोई भी ले सकते हो. ठीक है. तो ये AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन हो गया. अच्छा, अब इसके ऊपर बेस्ड थोड़ी सी हमको नोट्स लिखनी है. द फर्स्ट थिंग हियर, स्लोप. ओके. अच्छा, तो यू विल से दैट सर स्लोप तो हमने पढ़ लिया है. यस, स्लोप वी हैव स्टडीड. We have defined the slope by two ways. Which are the two ways? The one was the 2-point formula. What was that? If you are given the 2 points x1 y1 and x2 y2, then the slope of the line is y1 minus y2 upon x1 minus x2. And another way to find out the slope is tan theta. Tan theta, where theta is the angle made by the line with the positive x-axis. ठीक है ना. अच्छा, अब स्लोप ऑफ दिस लाइन, मतलब अगर ये टाइप की लाइन दिया है आपको, स्लोप ऑफ द लाइन, सपोज द लाइन इज गिवन AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0. ओके, इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. अब ये तीसरी फॉर्मूला आ गई स्लोप की, and that formula is minus A by B. Okay, what is the formula दोस्तों? minus A by B. ये हो गई फॉर्मूला. ओके, minus A by B. क्योंकि अगर ये टाइप में आपका इक्वेशन दिया हुआ है, then you cannot use tan theta, you cannot use y1 minus y2 upon x1 minus x2. तो फिर ऐसी लाइन का स्लोप कैसे ढूंढेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज द फॉर्मूला. व्हाट इज इन वर्ड? व्हाट विल बी दिस इन वर्ड? इन वर्ड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट इज ए? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, isn't it? It is coefficient of x and divided by b. What is b? Coefficient of y. Coefficient of y. Isn't it? Okay. So words में याद रखना है. तो what is the slope of a line? Okay. Minus coefficient of x upon coefficient of y. This is the slope. Just for example. Okay. Just for example, suppose for the line, सपोज आपको लाइन दी हुई है 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ये हमारी लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. व्हाट विल बी द स्लोप? द स्लोप m is equal to, now this is the formula, minus A by B. So it is minus, A means 3 and B means minus 4. You have to take B as a coefficient of y. So coefficient of y is not 4, it is minus 4. So final answer क्या हो गया? 3/4. ये हो गया हमारा आंसर. ओके, that's all. So this is the way दोस्तों हम स्लोप को यूज़ करेंगे और फाइंड भी करेंगे यूजिंग द जनरल इक्वेशन. ये जनरल इक्वेशन से ऊपर से पूरा डिस्कशन चल रहा है. ठीक है, राइट. देन पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 कि अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट इंटरसेप्ट्स and also we have done the problems about intercepts, x intercepts, y intercepts, isn't it? Okay, right? So you know the theoretically concept what is intercept, but till now there is no formula is there to find intercept.
ओके 10.2 में एक्सरसाइज में क्या था दोस्तों, इंटरसेप्ट वेर गिवन इक्वल इंटरसेप्ट, द सम ऑफ द इंटरसेप्ट इक्वल टू 9, ऐसा सब दिया हुआ था, बट द इंटरसेप्ट वेर नॉट गिवन, राइट. नाउ सपोज यू वांट टू फाइंड द इंटरसेप्ट, इफ यू वांट टू फाइंड द इंटरसेप्ट तो क्या करेंगे. सो इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर द लाइन ax plus by is equal to c is equal to plus c is equal to 0. ओके, देखो यहाँ पे जब भी ये लाइन लिखते हैं ना तो एक बात ध्यान में रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 इज ऑलवेज देयर. एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट, लेकिन वो होता ही है. सो फॉर द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, if you want to find out the x intercept, there is a formula given, x intercept, okay, intercept is equal to minus c upon a, and y intercept is equal to minus c upon b. ये हमको फॉर्मूला गिवन है टू फाइंड आउट इंटरसेप्ट्स. नाउ जस्ट सी, इसको आप वर्ड्स में कैसे लिखोगे, हाउ डू यू राइट इन वर्ड्स. व्हाट इज सी, सी इज कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट, सो माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड दिस इज माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई. अब देखो ये ऊपर वाला एग्जाम्पल में ओरली में बता देता हूँ. फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विल बी द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0. इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करो तो माइनस सी अपॉन ए क्या होगा, माइनस 7 अपॉन 3, सिंपल. ओके, y इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी, तो क्या होगा वो हो जाएगा 7/4, बिकॉज b इज -4 नो, देयरफॉर y इंटरसेप्ट करेंगे तो 7/4 हो जाएगा. ठीक है दोस्तों, ये हुआ क्लियर. हाँ, राइट. ओके, सो these are the things we have studied or discussed using what, the general equation of a line. ठीक है. Now we'll go further. So the third point means the third theory based on the general equation of a line is, if the line is given in the general form, that is ax plus by plus c is equal to 0, then how to convert into the normal form. Okay, there is a method or the way to convert the line ax plus by plus c is equal to 0 in the normal form. Normal form को आप p ओमेगा फॉर्म भी बोल सकते हो. Normal form means p omega form. Okay, right? Or the same can be written in another way, the title, that if the line is given ax plus by plus c is equal to 0 and you want to find out three things. What is p omega equation? Normal form क्या है, x cos omega plus y sin omega is equal to p. So I am writing this same title in the different way, that to find cos omega, sin omega and p, if the line is general equation given ax plus by plus c is equal to 0 is given. ओके, मतलब
इक्वेशन गिवन इन द जनरल फॉर्म, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है, और फ्रॉम दिस यू वांट टू फाइंड आउट पी। पी व्हाट वाज पी, वो याद है ना कि भूल गए हो? पी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओमेगा मीन्स द एंगल, वो सब था। ए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आई जस्ट ड्रॉ अ लाइन, ये मैंने सपोज लाइन ड्रॉ किया। तो यहाँ से ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस जो है वो उसको P बोलेंगे, एंड दिस एंगल विल बी ओमेगा, ये एंगल ओमेगा। P इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो P जो है ना दोस्तों, ये हो गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज आई कॉल दिस M, सो OM इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। OM क्या हो गई? परपेंडिकुलर लेंथ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द लाइन, और you can say P is the distance, okay, of the line, perpendicular distance of the line from the origin, ऐसा भी बोल सकते हो, perpendicular distance of the line from the origin, करेक्ट? ओके, अच्छा, तो let us see what to do। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। वी विल स्टडी दिस, ओके, वी शैल अंडरस्टैंड दिस with an example, understand this with an example। अब देखो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ओके। सपोज यू आर गिवन द लाइन, अब देखना मैं एक टेक्स्ट बुक में से सम ले रहा हूँ, जस्ट वेट, just see from textbook only I have taken one problem, that let root 3x plus y minus 8 is equal to 0 is the line given, is the line given, and the question asked is find cos omega, sin omega and p, ये तीनों फाइंड करने इसमें से। तो देखो मैं जो मेथड कर रहा हूँ ना वो पूरा थियरी है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग विथ एन एग्जाम्पल, सो दैट हमारा एक एग्जाम्पल भी हो गया एंड यू विल अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज ऑल्सो, ओके, ठीक है, राइट। अब ध्यान से देखना इसको दोस्तों कि सबसे पहले क्या करना है, ऑलवेज हियर ये जो गिवन लाइन है ना, रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये -8 को मैंने उस राइट हैंड साइड में ले लिया, एंड देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ओके, एंड व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट नोट इज, इंपॉर्टेंट नोट ये है कि ऑलवेज यू हैव टू टेक, ऑलवेज ये जो मैंने 8 लिया, 8 इज नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव, करेक्ट। So on the right hand side, whatever the given line to us, you just take the constant on the right hand side, but the positive constant only, okay, always take, okay, constant in a positive manner, means always take constant positive, constant positive term, okay, positive term on right hand side, on RHS, ऑलवेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, राइट। सपोज यहाँ पर होता +8, ध्यान से सुनना, सपोज ही दिस इज +8, तो +8 को यहाँ पे इस तरफ राइट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -8, सो नो, +8 विल बी रिमेन +8 ओनली, ये दोनों टर्म को उस तरफ ले जाना पड़ता, मतलब ऑलवेज कीप द कांस्टेंट पॉजिटिव, कांस्टेंट को पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है, राइट।
अच्छा, तो अभी इसमें देखो ये आ गया हमारा, इसको मैं थोड़ा सा एक बार और दूसरी सम लेके भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। नाउ डिवाइडिंग, देखना ध्यान से, ये पूरा थियरी है। दिस इक्वेशन बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 + 1। ओके, इससे मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा, व्हाट वी विल गेट? इससे पूरे इक्वेशन को ये इसी, दिस इज द वे यू हैव टू फाइंड आउट कॉस ओमेगा, साइन ओमेगा एंड पी। हाँ, अब ये डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/2 √3/2x प्लस 1/2y, ओके, एंड इज इक्वल टू 8/2, ठीक है, दैट विल बी 4। अब इसको आप कंपेयर कर दो, किसके साथ कंपेयर करोगे? दैट इज, दिस इज x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, isn't it? तो देखो व्हाट इज cos ओमेगा देयर? cos ओमेगा इज √3/2, so cos omega is √3/2, sin omega is 1/2, and what is p? p is equal to 4। तो देखो तीनों मिल गए, cos ओमेगा, sin ओमेगा, p। इज दैट क्लियर? ओके, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपको ओमेगा पूछे, सो यहाँ पर यूजुअली यू विल गेट द नोन एंगल्स। जैसे ये √3/2 1/2, तो यू नो 30 डिग्री, ओके, राइट? सो आंसर विल बी 30 डिग्री, π/6, इजंट इट? ठीक है ना, क्लियर, राइट? अच्छा, अब ये जो हमने लिखा ना, उसके हिसाब से ये cos ओमेगा, साइन ओमेगा, ओमेगा की फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट ये जो p है, p की फॉर्मूला वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सो आई एम राइटिंग इट बिकॉज उसका बहुत ही वाइडली यूज होता है। सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, ओके दोस्तों, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू जस्ट हैव अ p, फॉर्मूला p क्या होगी देखना ध्यान से, मॉड्यूलस ऑफ c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। मैंने मॉड्यूलस ऑफ c क्यों लिखा? बिकॉज वी हैव टू टेक c एज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। मैंने अभी पीछे इंपॉर्टेंट नोट में लिखा दैट टेक c एज अ पॉजिटिव कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है ना, राइट? सो अकॉर्डिंगली मैंने मॉड्यूलस ही रख दिया, जो भी c है उसको u रख देंगे, मॉड्यूलस ऑफ c, सो वो पॉजिटिव ही हो जाए। और मैंने पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड किया था? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से किया था। सो दिस इज व्हाट, ये किसकी फॉर्मूला हो गई? इट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, फ्रॉम द ओरिजिन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, ओके, उसको याद रखना ही पड़ेगा कंपलसरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके, ठीक है ना, राइट? अच्छा, सो नाउ जस्ट सी कि ये जो हमने पीछे सम लिया ना जस्ट नाउ, कैन यू, आई एम टर्निंग द पेज अगेन, you can see this equation. Now what is modulus of c? 8, okay, and the formula is upon under root of a square plus b square, mod c upon under root of
3 + 1, तो क्या हो गया 2, आ गया डायरेक्ट आंसर. Isn't it clear now? Okay, right. Now by the same way, suppose that एक और एग्जाम्पल इसी में से मैं बनाता हूँ जस्ट टू मेक यू मोर क्लियर कि यही सेम इक्वेशन है. √3x + y -8 के बदले +8 = 0 दिया हुआ है. आर इज गिवन. तो यहाँ पर मैं किसको 8 को ही हमको पॉजिटिव 8 लेना है, तो +8 इफ आई टेक ऑन दैट साइड विल बी नेगेटिव, सो यू कैन नॉट टेक इट. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, वी विल डू इट लाइक दिस, -√3x - y = 8. देखो ध्यान से, 8 को मैंने ऐसा समझ लो कि 8 को वहीं के वहीं रखा और ये दोनों टर्म को मैं ऑपोजिट साइड ले गया. 8 इज पॉजिटिव, सो टेक इट पॉजिटिव ओनली. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस. इसलिए मैंने सेम एग्जांपल में वो साइन चेंज करके आपको दिया हुआ है. ठीक है, राइट. नाउ डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय √a² + b². So now a is √3, b is 1 and c is 8. So dividing throughout by √a² + b² means 3 + 1. X minus 1 upon √3 + 1 y is equal to 8 upon √3 + 1. Okay, right? Now ये क्या हो गया? This is what? -√3/2 x minus 1/2 y is equal to 4. ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला? You get the cos omega is equal to -√3/2, sin omega is equal to -half and p is equal to 4. ठीक है ना? So this is the way we shall use this formula or this theory. But इसमें ना यूजुअली cos ओमेगा sin ओमेगा का जनरली कम पूछते हैं एग्जाम में. मैक्सिमम किसका यूज़ होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है. सो इसकी फॉर्मूला जो है वो तो आपको कंपलसरी, यू हैव टू रिमेंबर इट कंपलसरी. ठीक है, क्लियर दिस दोस्तों, राइट? ओके, एंड नाउ just 2 more small points are there in theory, that it's a perpendicular distance of a point from a line. मैं उसको सिंबल में यूँ लिख रहा हूँ, perpendicular distance of a point. point को मैं ले रहा हूँ x1 y1. point is x1 y1. okay, perpendicular distance of a point from a line is say ax plus by plus c is equal to 0 is given by अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अभी टेक्स्ट बुक के हिसाब से नोटेशन ले रहा हूँ तो वो डी नोटेशन है. डी फॉर डिस्टेंस. In our older book means state board textbook, the notation was taken as P only, small p. P stands for perpendicular. वो क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसलिए P नोटेशन लिया था. ठीक है, अब वो देखो डायग्राम के हिसाब से क्या है कि ये लाइन है और देयर इज अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन से x1 y1 और वो लाइन से ये पॉइंट से ये लाइन के ऊपर हम यूँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. तो ये जो AM लेंथ है ना, उसको अभी अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्स्ट बुक द नोटेशन गिवन इज D. D नोटेशन इज गिवन. ठीक है, राइट? सो ये हमारा याद रखना है आपको कि, और व्हाट इज़ द फॉर्मूला गिवन देयर, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला और उसका यूज़ होगा कैसे वो हम प्रॉब्लम्स में 10.3 में देखेंगे. द फॉर्मूला विल बी मॉड्यूलस ऑफ AX1 plus by1 plus c upon
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। तो क्या करना है आपको कि ये हमारी लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज अ लाइन। तो उसमें ये पॉइंट जो है ना, x की जगह पे x1, y की जगह पे y1 डाल दो, ठीक है, राइट, एंड देन you will get the answer. The formula है distance, now d notation, okay, not p notation but d notation. अभी नेक्स्ट जो थियरी है वो लास्ट आज की हमारी होगी, वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two parallel lines, between two parallel lines, okay, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या दिया होगा, तो लाइंस आर गिवन एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 एंड द अनदर लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो इसमें कि पैरेलल लाइंस में क्या दिया हुआ है दोस्तों आपको, ए एक्स प्लस बी वाई सेम दोनों में, वाई बिकॉज पैरेलल, और पैरेलल की कंडीशन क्या है, देयर स्लोप मस्ट बी इक्वल। नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन, माइनस ए बाई बी, स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन ऑल्सो माइनस ए बाई बी, है कि नहीं, देयरफॉर इट इज ए एक्स प्लस बी वाई ओनली। सो टू पैरेलल लाइन्स नाउ मीन्स लाइक दिस, एक लाइन हो और ये दूसरी लाइन है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये perpendicular distance only, right, okay, and that notation also taken as d only. So the formula is d is equal to, फॉर्मूला याद रखोगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो सब यूज होगा, मॉड्यूलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हो गई फॉर्मूला, ओके। दोनों के कांस्टेंट का सब्ट्रैक्शन करना है, दैट्स ऑल, c1 माइनस c2 मॉड्यूलस अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्लियर, राइट। सो नाउ वी स्टॉप हियर, ऑल द थियरीज बिफोर 10.3 इज डन। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज 10.3. Okay दोस्तों, thank you very much. Hope you understand today's lecture. Thank you very much. Have a nice day.